Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to practice number of question based on AFM Module C. Okay. Module C, जहाँ पे थोड़ा सा जो अर्थमेटिक पार्ट है या बेसिकली जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है. So you can expect around 5 to 6 questions based on numericals from this particular unit. Okay. So basically based on ratio analysis, NPV, weighted average cost of capital, one question based on YTM, and one question based on Forex. So these are some areas which usually examiner they generally pick from question from this one, and questions are very basic. So you just need to know the basic concept of those particular topics, and with the help of those concepts you will be able to solve these particular numericals as well, right? I'll give you some flavor of those type of question as well, right? तो सबसे पहले आपका जो फंडामेंटल्स हैं दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, राइट? सो एएफएम के अंदर भी आपका कुछ एरियाज हैं, एंड जितना आपके एएफएम के लिए रिक्वायर्ड है, सो आई हैव ऑलरेडी डन अ कंपाइलेशन and which is already live on our platform. So go through that particular one. That is definitely going to help you, right? Now we will start this session. So one request to all of you guys, please do like and do share this session with others also, so they can also take advantages of these classes. We will start our today's session with very first question. So first, let's have a look about the module C. So module C, which is all about financial management. So we have financial management and overview, ratio analysis. Then we have interest and annuities. We have calculation of YTM, yield to maturity. Then we have Forex arithmetics, capital structure and cost of capital, capital investment decision, equipment leasing and lease finance, working capital management and derivatives. Okay, so if you talk about your favorite question कि कौन से important है, ठीक है? So I'll suggest ratio analysis. You can expect 2 questions based on numericals or 1 question based on numericals. One is fundamental aspect of ratio analysis. Then YTM bond base, again question can be based on theorems of bonds, and you have sometimes they generally, like most of the years I saw कि they generally ask question to calculate how to calculate YTM and current yield, से जो मैं आपको दोनों बताऊंगा आज ही इसी सेशन में, ठीक है? अर्थमेटिक्स आपका यहाँ से वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड फ्यूचर रेट कैलकुलेशंस और द बेसिक अबाउट द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है? Then capital structure and cost of capital, again very important one, especially that weighted average cost of capital is quite important from this. Capital investment decision. So again this topic is important, so you will get question based on NPV. There will be a 2 marks question for sure based on NPV methods, right? uh, then we have equipment leasing and lease finance, again 1 to 2 questions, and you do not have to put any additional effort for this one because we already done this in our IA and IFS classes. Working capital, they may ask half marks question, very easy. Derivative, again very important one, but again we do not have to worry about this one because we already done with this particular topic in our IA and IFS subject, right? So these are the units and their importances. सो बहुत बेसिक है, अगर आप फंडामेंटल्स फाउंडेशन वालों को देखेंगे सो यू विल इजीली गेट दीज पर्टिकुलर थिंग्स, राइट? सो नाउ गाइस वी विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. So the question is, generally question is based on ratio analysis. So a company has 5 lakh shares and its net profit after share is 25 lakh. The current market price of share is 70 rupees. So you have to calculate PE ratio. One thing about ratio analysis. So first thing, सबसे important जो है, you need to know the formula. Ratio क्या होता है उसका, ठीक है? दूसरा देयर यूजेस, ठीक है? सो अगर हम लोग बात करें पी रेशियो का, हाउ वी कैलकुलेट पी रेशियो. सो पी रेशियो इज इक्वल टू योर current market price divided by EPS, earning per share, right? So this is the formula to calculate PE ratio. So now as per the information, so first we have to calculate EPS, ठीक है? Based on the given data, ठीक है? So like current market price is given here, right? How much? 70 rupees per share. So you have to calculate EPS first. So now
How we calculate EPS? EPS is equal to profit after tax minus dividend divide by number of shares or weighted number of shares. ठीक है? So number of shares. So it is profit after tax is how much? 5 lakh rupees and sorry 25 lakh rupees and number of shares is how much? 5 lakh. So it is how much? Rupees 5. ठीक है? So EPS of this particular company is how much? 5. ठीक है? So EPS is 5. So now 70 divided by 5, so it is equal to 14. ठीक है? So this is the way you will be reached to the conclusion part. ठीक है? तो P रेशियो है या फिर आपका करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, बेसिकली जो डिफरेंट एस्पेक्ट हमने समझे थे, एंड आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड सेशन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी. ठीक है? तो उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए. सो एक डेडिकेटेड सेशन इस पे किया जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट वन. If a bond face value is rupees 1000 carrying a coupon interest of 5% is quoted and market at rupees 1200, so you have to calculate current yield. So this bond is trading in premium. ठीक है? So premium और discount का केस क्या होता है कि आपका जैसे एक बॉन्ड इश्यू किया गया जिसका फेस वैल्यू है कितना 1000. ठीक है? सो दैट मींस फेस वैल्यू व्हिच इज आल्सो नोन एज पार वैल्यू. ठीक है? सो एट द एंड ऑफ the maturity period in. So basically borrower will pay this 1000 rupees to the investors. ठीक है? Plus interest rate आपका. ठीक है? तो अब फेस वैल्यू 1000 है, अभी ये 1200 में ट्रेड हो रहा है. दैट मीन्स at the end of the maturity period it will come down to this 1200 will come down to 1000 rupees. So this is in premium. एक चीज और समझ लो, जब भी प्रीमियम में होगा so YTM will be less than your coupon rate. ठीक है? If your bond is trading in premium, so your YTM will be less than the coupon rate. And if it is in discount, let's say the current market price, suppose that it was 850. अगर ये 850 होता, that means your bond is trading in discount because at the end of the maturity it will become 1000. So your coupon rate will be greater than the your YTM will greater than the your coupon rate. ऐसा these are generally known as theorems of bond. इनके ऊपर क्वेश्चन था लास्ट ईयर भी. ठीक है? So now अब the question is how to calculate YTM. So YTM कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? नॉट YTM, सॉरी, करंट यील्ड. So current yield is equal to annual coupon divide by your current market price. ठीक है? If it is in percentage, so into 100. ठीक है? So annual coupon, so face value is 1000 and coupon rate is how much? 5%. So 5% of 1000 is equal to 50 rupees. So annual coupon is how much? 50 rupees. ठीक है? तो annual coupon कितना है हमारा? 50 rupees and current market price is how much? 1200. ठीक है? So it into 100, so it is equal to क्या होगा आपका? So now you can solve this particular question, and this is the calculator which is allowed in your examination. 12-digit calculator basically. ठीक है? So scientific calculator are not allowed, so but you can use these type of calculators. ठीक है? So it is into 100, so it is 4.166666. ठीक है? So it is 4.1666. ठीक है? So what will be your correct answer? 4.16% will be right answer for this particular one. So option C is the correct answer for this one. Understood? तो अगर आपने YTM ये समझ लिया ना, तो आपका 1 मार्क्स आपको 1 मार्क्स आपका फिक्स हो गया मान लो. ठीक है? 3 में से किसी शिफ्ट में या तीनों शिफ्ट में हर साल आपका ये पूछा जाता है. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. एंड दो गाइस ये जो सेशन है सी के ऊपर, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द एंटायर मॉड्यूल सी. I'll come up with a dedicated session where we will talk about only about the numerical portion. Okay, so you do not need to worry about that numerical portion and all, right? Chalo. So now the question is based on derivative. So over the counter derivatives and exchange or traded derivative can be differentiated based on. So I hope everybody knows about the differences between OTC. OTC, that is over the counter derivatives, versus exchange traded derivative. ठीक है? Exchange traded derivative means which get traded in stock exchanges like NSE, BSE. If you talk about the derivatives which are OTC, so we have forward, and we have swap, right? So forward and swap. In case of exchange traded, we have future
So future and we have options. So these are exchange traded derivative, right? So now why I'm writing these particular things? The idea is if there is a question between forward versus forward future, forward versus option, or swap versus future, or swap versus option. So you will be able to answer that particular question. Okay? So now guys, whenever we talk about exchange OTC, so OTC means these are private contract. ठीक है, हमने आपका I spent 1.45 hours to explain derivative in your IE and IFS. ठीक है, तो आई होप आपने देख लिया होगा वो. So private contract means these contract are generally customizable by the parties. ठीक है, जो भी parties involved हैं वो अपने हिसाब से इसको customize कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपका देयर इज नो मीडिएशंस, कोई भी मीडिएटर आपका नहीं होता एक्सचेंज या अदर्स. काउंटर पार्टी रिस्क इज इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, इसके अलावा आपका मतलब ऐसे बहुत सारे फीचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड में विच गेट ट्रेडेड ओवर द रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएसई बीएसई. सो देयर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द एक्सचेंज. ठीक है, सो लाइक जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइज है, लॉट साइज है, एक्सपायरी है, एवरीथिंग, मार्जिन, सो दैट इज जनरली डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज इटसेल्फ. दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं आपका काउंटर पार्टी रिस्क का, so that there is no counterparty risk because exchange stand a guarantee. They generally ask you for initial margin and we need to maintain that particular margin based on M2M, which is mark to market margin. ठीक है, so इस तरीके से their contract is standardized. You cannot change their contract. ठीक है, आप अपने हिसाब से contract को change नहीं कर सकते others. ऐसे बहुत सारे. So that means यहाँ पे अब दो parties हैं. So it is illiquid. ठीक है, less liquid. This is highly liquid. There are number of buyers, number of sellers. तो ऐसे बहुत सारे distinction we can create between OTC versus exchange और future versus forward. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. So based on risk exposure, तो अगर हम इसी क्वेश्चन को आपका लेते हैं रेफरेंस के लिए, सो OTC एंड आपका एक्सचेंज. ठीक है, सो OTC इन केस ऑफ OTC रिस्क एक्सचेंज इज हाई. ठीक है, counterparty risk is there and here we have low risk. ठीक है, these are low risky instruments. ठीक है, because exchange stand the guarantee. Regulation, we do not have any regulation, we do have regulation. ठीक है, price transparency, we don't have price transparency here. It's a private contract between two parties, तो हमें उसके बारे में नहीं पता चलेगा. Here you will get proper price transparency also. If you open NSE और VSE website, NSE BSE के website को अगर आप open करेंगे, if you search for any company, you will see top 5 buyer, top 5 seller, total buyer, total seller, everything is available on the platform. ठीक है, liquidation, if you talk about the liquidity, so these are very less liquid because we have only two parties. ठीक है, here we have, these are highly liquid. ठीक है, because we have number of buyers and number of sellers. So based on the all the parameters we can have a comparison between your OTC versus exchange traded derivatives. Understood? Next one, which of the following statement is correct about the options? So options के संबंध में कौन सा statement correct है? So call option enable a buyer to buy a stock at a strike price, where put option enable buyer to sell a stock at a strike price. True, पहला सही है, बिल्कुल ठीक है. So I hope everybody is aware about the options. ठीक है, options मतलब डेरिवेटिव आपने देखा होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ. नहीं देखा प्लीज देखें, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. Downside 2 marks question in your upcoming examination. Even in IE and IFS also this will help, right? So we have two type of options. Okay? So one is call option and another one is put option. Okay? So when we buy a call option, when we are bullish about the security, and when we buy put option, when we are bearish about the security. It give right to buy, it give right to sell, but not an obligation in both the cases, right? So now what is strike price? So once you will trade in the securities, so they have strike prices. Like they say, there is a XYZ security whose current market price is 100. So now you'll get 7 upside, 7 downside
स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। जैसे आपका सपोज दैट देयर टिक साइज इज 5, तो आपका 105, 1010, 1015 ऐसा, यहाँ पे आपका 95, यहाँ पे आपका 90, यहाँ पे आपका 85, ठीक है। सो सपोज दैट इफ देयर इज अ पर्सन हु इज बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, अब जैसे देयर इज अ इन्वेस्टर कॉल मिस्टर एक्स हु इज बुलिश, ही इज बुलिश अबाउट दिस सिक्योरिटी, कि इसको लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर दिस कंपनी शेयर प्राइस विल ट्रेडेड बियॉन्ड दी 115, ठीक है, 115 से ऊपर इसका ट्रेड होगा। सो व्हाट मिस्टर एक्स विल डू, ही विल बाय XYZ कंपनी इज कॉल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्ट्राइक प्राइस आपका 115 पे, जो भी इसका करंट प्रीमियम होगा वो प्रीमियम इसको पे करना होगा, ठीक है। In case of put option, so suppose that there is a person, investor called Mr. Y, who was bearish on this particular security. Y को लगता है कि आने वाले समय में इसका प्राइस नीचे जाएगा और नवंबर मंथ के एंड से पहले इसका प्राइस हो जाएगा कहाँ, 85 या उससे नीचे। So what Mr. Y will do? He'll buy XYZ company's put option, strike price 85 for the month of November, and उसका जो भी प्रीमियम होगा वो आपका वो पे करेगा, ठीक है। प्रीमियम इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो चीज आपका बनता है, ठीक है। सो नाउ पहला स्टेटमेंट, आई होप दिस इज जस्टिफाइड, इफ स्टॉक मार्केट डिक्लाइन देयर इज अ लॉस इन कॉल ऑप्शन एंड पुट इन प्रॉफिट इन पुट ऑप्शन, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसे अब ये एक्स और वाई दोनों की अलग अलग पोजीशन, अगर कल के डेट में स्टॉक मार्केट नीचे आता है, ठीक है, या XYZ कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आता है, तो किसका फायदा होगा, इफ इट कम डाउन तो देयर विल बी बेनिफिट फॉर दिस। इसने जो ये 85 रुपीज की पुट परचेज कर रखी है, इसका प्रीमियम क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्स आपका अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो इसका, अगर ये बढ़ेगा तो ये जो कॉल्स हैं इनकी प्रीमियम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम बेसिस पे आपका ट्रेडिंग होता है। अंडर कॉल ऑप्शन सेलर हैज अनलिमिटेड रिस्क। अब देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इफ यू स्टडी द पे ऑफ्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन का अगर आप पे ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है, सो अगर आप पे ऑफ्स को स्टडी करते हैं ऑप्शंस के केस में, ठीक है, सो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है, या इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल एंड पुट, अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो या पुट ऑप्शन को बाय करते हो, दैट मीन्स लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट। इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल सो और लॉन्ग पुट, द पे ऑफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पे ऑफ क्या होगा आपका, चलो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रख लेता हूँ कॉल को, तो हमारे लिए आसान होगा समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो लॉन्ग कॉल के केस में सपोज दैट दिस इज द प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम इज सपोज दैट 10 रुपीज। सो इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल दिस इज द मैक्सिमम लॉस एरिया, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, एंड प्रॉफिट एरिया इज दिस, ठीक है, मींस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। सो इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल अगर आपने किया है तो लॉस इज मिनिमम अप टू और लिमिटेड अप टू प्रीमियम पेड, आपने उस स्ट्राइक प्राइस के लिए जितना प्रीमियम पे किया था इनिशियली वो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। दैट मीन्स दैट 10 रुपीज कैन बिकम जीरो, ठीक है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करता है सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा, अगर वो मीट करता है और ऐसा ही ऊपर था, या अपर साइड कितना भी ऊपर जा सकता है। सिमिलरली इन पुट ऑप्शन ऑल्सो, इफ यू बाय अ पुट ऑप्शन, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन खरीदा और उसके बाद उसमें जो पे ऑफ बनेगा, लिमिटेड लॉस अप टू प्रीमियम पेड, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। आपने पुट ऑप्शन खरीदा, ऊपर चला गया, ठीक है, आपकी चीज नहीं हुई तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा जितना आपने प्रीमियम दिया है। बट अगर वो नीचे आता है और बहुत नीचे आता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देके जाएगा। इट्स अ केस ऑफ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट। बट वहीं पे अगर हम लोग इसको करते हैं आपका शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है आपका सेल करना, इट इज इक्वल टू सेल। इफ यू सेल कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, अगर आप कॉल ऑप्शन को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो यहां पे आपका क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है दैट इज लिमिटेड अप टू ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। तो अगर आप इस ऑप्शन को क्या करते हैं, आपका सेल करते हैं, सो योर प्रॉफिट इज लिमिटेड अप टू प्रीमियम, तो जितना प्रीमियम है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, एंड लॉस इज अनलिमिटेड। आपने सेल किया, सेल करने का मतलब अगर हम सेल कॉल कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर बियरिश, ठीक है, इसका मतलब है आप क्या हो, बियरिश हो। आपको कॉल सेल करने का मतलब है आपको लगता है नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर चला गया तो आपको बहुत सारा नुकसान देके जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज द वन
जो आपका यहाँ पे। वहीं अगर आप पुट को सेल करोगे तो उस केस में भी सेम चीज, ठीक है। पुट सेल करने का मतलब है यू आर बुलिश अबाउट द सिक्योरिटी। एक और तरीके से मैं आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे व्हेन वी आर बुलिश अबाउट द सिक्योरिटी, जब हम लोग क्या होते हैं आपका बुलिश होते हैं, ठीक है, हमें लगता है ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे आपका बाय कॉल ऑप्शन, ठीक है, बाय कॉल प्लस सेल पुट ऑप्शन, ठीक है, सेल पुट ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, बुलिश ही है, ठीक है। तो आप मतलब एक्सट्रीम बुलिश हो, आपको लगता है ये होना ही होना है, ठीक है। दूसरा, वहीं पे अगर आप एक्सट्रीम बियरिश हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका बाय पुट ऑप्शन, ठीक है, आप नीचे आने वाला है तो बाय पुट ऑप्शन प्लस सेल कॉल ऑप्शन, आप क्या कर सकते हो, कॉल को भी सेल कर सकते हो, जिससे कि जो मार्केट प्रीमियम है वो भी आपका हो जाए। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का आपका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ए बी सी डी या ए बी सी, all these statements are correct about the options. Next one, Mr. A exercised an option and it resulted into loss, so this is known as, so again this is a concept from options. So we have three type of settlements. One is in the money, ठीक है, in the money, ओके, आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ITM, ठीक है, सो इन द मनी। दूसरा है आपका एट द मनी, एट द मनी, which is known as ATM, and third one is out the money, out the money, so which is known as OTM, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट ढंग से बता देता हूँ, ठीक है। इट्स अ प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका प्रॉफिट सिचुएशन है, ये आपका लॉस सिचुएशन है, ठीक है। इवेंचुअली इसमें भी लॉस ही हो रहा होता है, बट इट डिपेंड कि एक्सरसाइज में अगर एटीएम है तो इट्स अ केस ऑफ लॉस आपका, ठीक है। तो बट ये दो क्लियर कट आपको इंडिकेशन देते हैं। सो नाउ इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं किसके लिए, आपका कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। अगर आप कॉल ऑप्शंस के लिए पढ़ते हैं तो आपका कॉल ऑप्शन जहां पे आपका ओपन पोजीशन है, इन द मनी इज, आपका कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन योर स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन योर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस था 110 का, स्पॉट प्राइस आपका है 125, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है, मतलब इट इज द केस ऑफ इन द मनी, मतलब आपने प्रेडिक्ट किया था कि इसका प्राइस 110 से ऊपर जाएगा, इसीलिए आपने 110 का कॉल ऑप्शन परचेज किया था, और एक्चुअल में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या एक्सपायरी के दिन इसका प्राइस है 125 रुपये, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है। एट द मनी इज स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, ठीक है, ये आपका 110, ठीक है। आउट द मनी इज व्हेन योर स्पॉट इज लेस देन योर स्ट्राइक, ठीक है, मतलब स्ट्राइक तो हमारा 110 है, बट स्पॉट कितना है आपका, सपोज दैट 105, तो इट्स अ लॉस सिचुएशन, ठीक है, ये आपका क्लियर कट लॉस, ये आपका कॉल के केस में। अब यही अगर आप पुट के केस में देखोगे तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ पुट ऑप्शंस, ठीक है, पुट ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं, पुट ऑप्शन में मतलब क्या होता है, बियरिश, नीचे जाने में फायदा, ठीक है। तो अब इन द मनी क्या होगा आपका, इन द मनी क्या होगा, व्हेन योर स्ट्राइक प्राइस, strike is less than your spot, ठीक है। so your strike is less than your, sorry मैंने गलत कर दिया ये, ठीक है, when your strike price is greater than your spot, ठीक है, greater than your spot, ठीक है, हमने वहां पे क्या लिखा था, spot is greater than, हाँ बिल्कुल, आपका स्पॉट, ठीक है। तो आप जैसे स्ट्राइक हमारा 110 सपोज दैट, ठीक है, एंड स्पॉट है आपका सपोज दैट 90, मतलब हमने बोला था कि 110 से नीचे जाएगा, ये कितने में आ गया, 90 में आ गया, सो इट्स अ प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है। तो इन द मनी अगेन प्रॉफिट सिचुएशन होगा यहाँ पे भी, ठीक है। इन केस ऑफ दिस इट इज स्ट्राइक इज इक्वल टू योर स्पॉट, ठीक है, 110, आउट द मनी क्या होगा यहाँ पे आपका, व्हेन योर स्पॉट इज ग्रेटर देन योर स्ट्राइक, ठीक है। सो आपका स्पॉट इज सपोज दैट 120 एंड योर स्ट्राइक वाज हाउ मच, आपका 110, ठीक है। तो दिस इज आउट द मनी इन केस ऑफ पुट ऑप्शन एंड इट इज अ लॉस सिचुएशन। अंडरस्टूड, क्लियर, हाँ है ना, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो नाउ यू नो द आंसर, ठीक है। सो Mr. A exercised an option and it resulted into loss, means it is out the money, ठीक है। ये आपका किसका सिचुएशन है, आउट द मनी का सिचुएशन है, ठीक है।
तो इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, और हमने इनका एक्सप्लेनेशन समझा, ठीक है। नेक्स्ट वन, from the given data calculate current ratio. So how we calculate current ratio? So current ratio is equal to current asset divided by current liabilities, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें से करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। कई बार वो आपको पूछता है व्हाट इज अ गुड करंट रेशियो, सो माय आंसर इज इन बिटवीन 1.2 to 2%, ठीक है। अगर मतलब 2 आपका, ठीक है, अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है इन दोनों के बीच में है, सो दैट इज कंसिडर्ड गुड, ठीक है। सो इससे नीचे अगर है तो डेंजर, उससे ऊपर है आपका, सो दैट मीन्स वो कंपनी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस कर रही है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कैश इज करंट एसेट, तो ऐड होगा, कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट ऐड होगा, स्टॉक एंड ट्रेड आपका करंट एसेट है, ऐड होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, ऐड होगा, ठीक है, एंड टोटल करंट लायबिलिटीज इज दिस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे क्विक एसेट्स को, ठीक है। तो जिससे आपको समझ में आएगा कि विद वन क्वेश्चन हाउ दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। एक ही केस के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है, और फॉर्मूलाज का खेल क्या है। सो 70 आपका 210 510 550 6 लाख, ठीक है। तो टोटल करंट एसेट कितने हैं आपका, करंट एसेट इक्वल टू 6 लाख एंड करंट लायबिलिटी आपका 2 लाख, ठीक है। तो 6 लाख आपका है, 6 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, सो इट इज 3:1, ठीक है। आपका करंट रेशियो क्या है आपका 3:1। अब अगर वो इसी सेम क्वेश्चन पे आपको बोलता कि कैलकुलेट क्विक रेशियो, ठीक है, अगर वो आपको मतलब ये तो आपका आंसर हो गया सी बी, ठीक है, कंफर्म है। अब देखो यहाँ पे अगर वो इसी क्वेश्चन पे आपको बोलता कि कैलकुलेट क्विक रेशियो, ठीक है, आपका इसी फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, सो हाउ विल कैलकुलेट क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज, एसेट टेस्ट रेशियो भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ वी कैलकुलेट क्विक एसेट्स, क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट, करंट एसेट जो अभी आपने निकाले कितना 6 लाख, ठीक है, माइनस आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड आपका जो भी एक्सपेंसेस है, माइनस आपका स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है। एंड हाउ वी कैलकुलेट क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस कैश क्रेडिट माइनस ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो अब आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, सो यू हैव टू प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देना है, इसको हटा देना है, स्टॉक को हटा देना है, ठीक है। तो अब इनकी जो क्विक एसेट्स हैं, क्विक एसेट विल बिकम कितना आपका 2.10 लाख, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 2.10 लाख डिवाइड बाय आपका 2 लाख, ठीक है, 2.10 ये नहीं 70,000 1,40,000, ठीक है। हाँ, तो आउटकम विल बी योर क्विक एसेट, और जिसको आप एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, बहुत आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following statement are incorrect with respect to ratio analysis, ठीक है। सो रेशियो एनालिसिस हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है, सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए आई विल कम अप विद सेशन, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आपको टेंशन ना हो, ठीक है। आप मतलब जो चल रहा है ना उसको अच्छे से समझोगे तो आसानी रहेगी आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी क्लासिफाइड बिटवीन ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल, ट्रू। सो कभी भी अगर हम जैसे अगर आप अकाउंटिंग रेशियोज को पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप आपको मिलेंगे, अगर आप अपना बुक भी ओपन करेंगे, एक आपका ट्रेडिशनल, दूसरा आपका फंक्शनल, ठीक है। ट्रेडिशनल को याद रखें, ट्रेडिशनल के हिसाब से देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ रेशियोज, वन इज balance sheet ratio, another one is profit and loss account ratio, and third one is composite, which is the combination, like where we generally pick one variable from profit and loss account, another variable from balance sheet. In case of balance sheet ratio, both the variable belongs to balance sheet, like जैसे asset और liabilities, ठीक है। In case of profit and loss account ratio, both the variables belongs to profit and loss account, ठीक है। तो ये आपका, so traditional classification is based on financial statement like balance or in profit and loss account, true. Inter statement or composite ratio analysis is an example of ट्रेडिशनल वन, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है आपका, ट्रेडिशनल का आपका एग्जांपल है, ठीक है। सो व्हाट विल बी, दिस इज इनकरेक्ट, मींस हमें इनकरेक्ट होना है, तो ओनली स्टेटमेंट इनकरेक्ट इज ऑप्शन सी इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो आपका आपको याद करने हैं कौन से वाले, जो आपका जो आते हैं किस कैटेगरी के अंदर, ट्रेडिशनल के अंदर। अगर आप फंक्शनल को देखेंगे तो फंक्शनल में बहुत बड़ा लिस्ट आपको मिलेगा, जैसे
लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपका करंट रेशियो, कैश रेशियो, आपका एसेट टेस्ट या फिर आपका क्विक रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। देन वी हैव सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अबाउट द कंपनी, जिसमें आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट पे आउट रेशियो, ठीक है, ये सब आपके, ठीक है। देन मार्केट प्रोस्पेक्ट, जिसमें आपका ईपीएस, डीपीएस, इसके अलावा पी रेशियो, ठीक है। फिर आपका अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट, वी हैव नेट प्रॉफिट, ऐसे अलग अलग यूजेस बेस। तो आप बेहतर क्या होगा कि सिर्फ ट्रेडिशनल को समझ लो, तीन ही नाम है, आप दूसरे को वैसे ही रख लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तीनों के अलावा जो है वो सब आपका एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है, या फंक्शनल आपका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइट, अच्छा मैंने आपको करा दिया था वाईटीएम के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत आसान है, करंट यील्ड आपको निकालना, सॉरी इसमें भी। एबीसी कॉर्पोरेशन हैज इशूड अ बॉन्ड फेस वैल्यू ऑफ 1000, कूपन रेट इज 6% एंड करंट मार्केट प्राइस इज 950। अब देखो यहाँ पे दिस बॉन्ड इज ट्रेडिंग इन डिस्काउंट, ठीक है। तो बॉन्ड आपका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों डिफर करती है, ठीक है। तो इसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है अभी, 950 रुपए। एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी ये क्या हो जाएगा, 1000 पे ही पेएबल होगा। तो अभी ये डिस्काउंट में, तो इसका जो कूपन रेट है वो, मतलब इसका जो करंट यील्ड है दैट विल बी ग्रेटर देन द कूपन रेट, ठीक है। तो इन्हीं को थ्योरम्स के नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब जो आपका आपके सवाल का आंसर होगा वो मोर देन 6% होगा, बट हमारे सारे ऑप्शन क्या है आपका 6% से ज्यादा है। तो फेस वैल्यू कितनी है हमारी 1000 है, ठीक है, एंड कूपन रेट इज हाउ मच, आपका 6%। सो 6% ऑफ 1000 इज इक्वल टू हाउ मच, 60 रुपीज, ठीक है। तो अब 60 रुपीज है आपका एनुअल कूपन। करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या समझा था हमने, करंट यील्ड इज इक्वल टू एनुअल कूपन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100। सो इट इज 60 डिवाइड बाय 950 इंटू 100, कितना होता है इसका आउटकम इज, कितना होगा इसका आउटकम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 60 डिवाइड बाय 950 इंटू 100, सो इट इज 6.315, ठीक है, 6.315, 6.315। तो आपका ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा आई होप सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम अबाउट एनपीवी इज फॉल्स, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होती है, ठीक है। सो लेट्स से लाइक व्हेन यू विल स्टडी, जैसे हम आप सीक्वेंस को पढ़ेंगे ना, एनपीवी और कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका जो वीडियो मैंने किया है ना आपके लिए फाउंडेशन वाला, दैट इज मस्ट टू वॉच, ठीक है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज वो आपको ना बहुत क्लियरिटी देगा। अगर मैं ऐसे आके एकदम एनपीवी पढ़ा करके उसके सवाल का आंसर दूंगा, दैट विल बी अ कंप्लीट बाउंसर, अगर आपने ये चीज पहले नहीं देखी है, ठीक है। तो एनपीवी, जैसे हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए वी हैव थ्री मेजर मेथड, वन इज एनपीवी, अनदर वन इज आईआरआर एंड थर्ड वन इज पे बैक पीरियड, जो आपके उसमें भी दिए गए, ठीक है। तो एनपीवी क्या होता है, लाइक जैसे देयर इज अ कंपनी, फर्स्ट दे विल डिसाइड देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्स्ट दे विल डू द कैपिटल बजटिंग, कि अगर हम अपना एक्सपेंशन प्लान करते हैं तो कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट, देन दे विल डू द कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, कितना पैसा इक्विटी के थ्रू रेज करेंगे, कितना डेट के थ्रू, ठीक है। जहां पे आपको मिलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन उसके बाद फिर आएंगे आप, आपके पास पैसा आ गया, अब यू हैव मनी, सो इन विच प्रोजेक्ट, अब आपके पास पैसा है तो आपके पास अल्टरनेट्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास तीन प्रोजेक्ट हैं, तीन में से बेस्ट रिटर्न कहां पे मिलेगा, तो उसके लिए आप यूज करेंगे आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनपीवी, सो इट इज बेस्ड ऑन आपका डिस्काउंटिंग मेथड, ठीक है। जैसे ये सिंपली क्या बोलता है कि जब आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को आपका इवेलुएट कर रहे हैं, तो आपका जो आउटफ्लो, जैसे सपोज दैट इन अ प्रोजेक्ट वी आर स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, हम 1 करोड़ रुपए आपका स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और दिस प्रोजेक्ट इज फॉर 3 years, 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज योर आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो, एंड ये जो आउटफ्लो है ये क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए आपका अभी लगा रहे हैं, ठीक है, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, जिसका इनफ्लो इज समथिंग लाइक दिस। पहले साल हमें मिलेगा सपोज दैट आपका
फर्स्ट ईयर विल गेट सपोज दैट 40 लैक्स, ठीक है, पहले साल का रिटर्न है 40 लाख, दूसरे साल का रिटर्न है आपका 50 लाख, एंड तीसरे साल का रिटर्न है सपोज दैट 30 लैक्स, ठीक है। तो अब ये आपके क्या है, आउटकम्स है, ठीक है। दीज आर बेसिकली दीज आर दी इनफ्लो, ठीक है, ये आपका इनफ्लो है, बट ये इनफ्लो किस में है, आपका फ्यूचर वैल्यू में, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू आर गेटिंग दिस 40 लाख रुपीज, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर यू विल गेट 50 लाख, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यू विल गेट 30 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब एनपीवी मेथड क्या बोलता है ना, इट सेज कि अगर आप ऐसा कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका इनफ्लो कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, सो हमें डिस्काउंट करना होगा दीज फ्यूचर इनफ्लोज को आपका, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर में इनफ्लो हैं उनको आपको डिस्काउंट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ उनको मैच करना होगा, ठीक है। मतलब आप इसको टोटल करके खुश मत होइए, जैसे इन सबका टोटल इज 40 50 90 लाख 1 लाख 1 करोड़ 20, इसका मतलब 1.20 करोड़, मतलब अगर हम एक नॉर्मल इंसान की तरह देखते हैं, 1 करोड़ लगा रहे 3 साल में 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, तो सीआई के हिसाब से आपका, एसआई के हिसाब से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है, कर लेना चाहिए, ऐसा नॉर्मल व्यू। ये बोलता है नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि टाइम वैल्यू हैज अ मनी, ठीक है, मनी इनफैक्ट, ठीक है, जैसे हो ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, जैसे इनका क्या मानना है कि जो आज का 1 रुपए है उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू 1 साल बाद के जो आपका 1 रुपए है उसकी, ऐसा है ना, मतलब ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो ये आपका लॉजिक जो इसमें आपका लगेगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर आपके ऐसा आउटकम है, सो यू हैव टू डिस्काउंट इट, ठीक है, आपको उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब डिस्काउंट कितने से करोगे, दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। दो तरीके से देगा, या तो आपको दे देगा कि डिस्काउंट रेट इज 10% या 9% या 12%, या फिर वो आपको दे देगा कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपका 1 रुपी वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 0.90, second year it is suppose that 0.75, and third year it is suppose that 0.60, ठीक है। तो अब ये आपके हो जाएंगे, सो यू हैव टू कैलकुलेट, दैट मीन्स आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, सो यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर इनफ्लो आपका हो रहे हैं, ठीक है, इनका प्रेजेंट वैल्यू, हाउ यू विल कैलकुलेट आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, दो तरीके से, एक तो आपका डिस्काउंट रेट, जहां पे आपका क्या होगा, इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आर दी पावर एन आपका, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इनफ्लो इज आपका पहले साल का 40 लाख, 1 प्लस आर, आर डिस्काउंट रेट इज सपोज दैट 10%, तो 0.10 की पावर 1 पहले साल, दूसरे साल आपका इनफ्लो 50 लैक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 1 पॉइंट की पावर 2, एंड थर्ड ईयर इज 30 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 3, इस तरीके से सॉल्व करोगे। बट वो इतना कॉम्प्लेक्स अगर देगा तो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन देगा, अगर उसने 5 साल का दे दिया तो मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट दिल डू, वो आपको 1 रुपए की वैल्यू दे देगा, तो 0.90, तो आप क्या करोगे, 0.90 इंटू 40 लाख, 0.75 इंटू 50 लाख, 0.60 इंटू 30 लाख, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सपोज दैट हमने ये कैलकुलेशन किया, हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट ईयर इनफ्लो इज इक्वल टू सपोज दैट 35 लाख, ठीक है, सेकेंड ईयर इट इज सपोज दैट 40 लाख, एंड थर्ड ईयर इट इज सपोज दैट 20 लाख। अब इनका टोटल, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, ये आपका इनफ्लो 1 प्लस आर की पावर 1 प्लस इनफ्लो सेकेंड ईयर का 1 प्लस आर, थर्ड ईयर का इनफ्लो 1 प्लस आर, देन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन सबका टोटल आप हमने ये निकाला, तो ये कितना हुआ आपका 95 लाख, सो 95 लाख माइनस 1 करोड़, सो दिस प्रोजेक्ट क्या है, इसका एनपीवी क्या निकल के आया आपका, एनपीवी इज -5 लाख, इसका एनपीवी किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। व्हेन वी एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट, व्हेन योर एनपीवी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तभी हम आपका प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपका एनपीवी नेगेटिव में है, सो वी ग्रेटर देन 0 आप कर सकते हैं, सो सॉरी, ठीक है, सो ग्रेटर देन 0, सो वी विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। अगर आपका एनपीवी है इक्वल टू 0, सो वी विल अप्लाई आईआरआर मेथड। अगर आपका एनपीवी है लेस देन 0 और नेगेटिव में है, एज वी हैव दिस केस, सो वी विल रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
तो एक तरह अगर आप नॉर्मल व्यू पॉइंट से देख रहे हो तो हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, बट अगर हम एनपीवी मेथड को लगाएंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका क्या कह रहा है, नहीं, क्योंकि ये जो इनफ्लो है इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स जो आप आउटफ्लो कर रहे हैं उससे कम है, तो देयर इज नो पॉइंट टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस अभी मैं फिर से आपको बोलूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दीज आर बैक टू बैक 2 यूनिट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 यूनिट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका अनदर यूनिट, ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छे से फंडामेंटली एक बार आपका जरूर देखिएगा, सो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल में भी वीडियो किया, तो उन एरियाज को जरूर देखें। आप पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप नाउ यू विल बी एबल टू आंसर। So the temporal value of money is taken into consideration by the NPV method rule. All the discounted cash flow connected to a project are added up to determine the net present value. All of the cash flow connected to a project are considered by the NPV method. The project with lowest predicted NPV should be chosen. No, ये क्या होगा, जैसे मतलब एनपीवी है आपका, जैसे देर आर प्रोजेक्ट हमारे पास अल्टरनेट ए बी सी, अल्टरनेट ए का एनपीवी इज इक्वल टू आ रहा है सपोज दैट -2, ठीक है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट, ठीक है। एनपी आपका ए का एनपीवी इज इक्वल टू सपोज दैट 5 एंड बी का सी का एनपीवी इज इक्वल टू सपोज दैट 3, तो आउट ऑफ दीज 3 प्रोजेक्ट वी विल एक्सेप्ट दिस, ठीक है, क्योंकि इसका एनपीवी क्या है आपका हाईएस्ट है, ठीक है। सो वी विल गो, सबसे ज्यादा रिटर्न हमें कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। हाँ, अगर ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं दोनों अलग अलग, कि मैं ये मार्कर बनाऊं और मैं ये आपका रिमोट बनाऊं, एक है मार्कर का एक है रिमोट का, अगर मेरे पास कैपिटल है तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो विद बोथ द प्रोजेक्ट बिकॉज बोथ हैव द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस के ऊपर। फ्रॉम द गिवन डेटा एबीसी लिमिटेड कैलकुलेट इक्विटी रेशियो। सो इक्विटी रेशियो हाउ वी कैलकुलेट, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। सो इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। सो टोटल एसेट्स, ठीक है। अब आपके लिए काम मैंने आसान कर दिया। So shareholders fund, share capital, shareholders fund, reserve and surplus, this also belongs to shareholders. So shareholders funds is 3.45 lakh, ठीक है, and current asset, non-current asset, total asset is how much, 7.50 lakh, ठीक है। तो अब सिंपल से सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो आपका कितना है 3.45 डिवाइड बाय 7.50, तो क्या कितना होता है ये वैल्यू, 3.45 divided by 7.50 is equal to 0.46, ठीक है। सो 0.46 अगर ये परसेंटेज में दिया रहता तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दे 100 से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में, दिस इज एक्चुअल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ना एग्जामिनर आपका खाली करंट रेशियो या जो भी पूछा है करंट रेशियो ही पूछा है, ठीक है, वो आपका करंट रेशियो नहीं पूछ रहा है, वो आपका ये भी नॉलेज पूछ रहा है कि इस बंदे को पता है कि करंट या नॉन करंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपका यू हैव टू कैलकुलेट करंट, अच्छा ये तो और भी आसान है, ठीक है, ये नहीं मैं आपको बोला था दिल गिव यू बैलेंस शीट जहां पे ऐसा सेग्रीगेशन नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो आसान है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, तो 10 डिवाइड बाय 10, तो आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है, बहुत सिंपल सा था। Next one, calculate P ratio, price to earning ratio. When the market price per share is 460, earning per share is 140 and dividend is 40. अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी रेशियो। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखते हैं ना, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जो हमने पहले सॉल्व किया था वो थोड़ा टफ था, उसमें आपको पहले ईपीएस कैलकुलेट करना था। यहाँ पे ना ये जो लाइन है दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज, ठीक है, देयर इज नो रोल ऑफ डिविडेंड इन द कैलकुलेशन ऑफ अ पी रेशियो। डिविडेंड का जरूरत कहाँ पड़ता है, ईपीएस कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अगर आप ईपीएस कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड, ठीक है, वहां पे होगा। बट पी रेशियो का तो फॉर्मूला सिंपल बोलता है ना, पी रेशियो क्या बोलता है, पी रेशियो इज इक्वल टू योर आपका
करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। अब दोनों आपको दे रखे हैं, करंट मार्केट प्राइस 560 एंड आपका 140, सो इट इज इक्वल टू हाउ मच 4। ठीक है, तो 4 आपका हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, a type of contract which is designed to protect against the price fluctuation in the market, so that is generally known as hedge contract। ठीक है, so it is known as hedging। तो hedging क्या होता है आपका? generally to minimize the risk। ठीक है, hedging का इस्तेमाल किया जाता है आपका किसके लिए? risk minimization के लिए। ठीक है, next one, the exchange rate between two currencies that are valued against a third currency, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आपका क्रॉस रेट। आई होप यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना आपका जैसे डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन, आज के डेट में डायरेक्ट कोटेशन होते हैं। नाउ व्हाट इज क्रॉस रेट? तो क्रॉस रेट इज जनरली बेस्ड ऑन, क्रॉस रेट इज जनरली बिल्ड अप ऑन अ चेन रूल। ठीक है, ये आपका किस पे काम करता है? चेन रूल के ऊपर। ठीक है, चेन रूल। ठीक है, नाउ व्हाट इज चेन रूल? तो जैसे सपोज दैट वी हैव डॉलर एंड आईएनआर, वी हैव डायरेक्ट कोटेशन। सपोज दैट dollar and there is a currency called X which has a direct quotation. For argument's sake, they suppose that there is no direct quotation between INR and currency X। तो अगर हमें निकालना है how many X is equal to 1 INR। ठीक है, सो अगर हमें निकालना है how many X is equal to rupee या 1 INR, ऐसा निकालना है। so what we'll do, we will apply the chain rule। chain rule मतलब जो क्या करेगा, जैसे आपका एक्स है, डॉलर विल बिकम चेन एंड रूपी, तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम किसके थ्रू से? आपका डॉलर से, बिकॉज इट इज अ कॉमन करेंसी। सो व्हाट विल डू, फ्रॉम दिस मच ऑफ रूपी वी विल बाय डॉलर। तो जितना भी रुपए हो उससे हम डॉलर परचेज करेंगे। सेम डॉलर वी विल डिस्पोज ऑफ अगेंस्ट दी करेंसी एक्स। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो this cross multiplication is generally known as cross rate and it is based on chain rule। ठीक है, तो इसको हम लोग आपका इस तरीके से जानते हैं। so what will be your correct answer? cross rate will be right answer for this one। next one, a firm start its business by raising 2 crores to meet a capital requirement, so that means the company's capital is how much? 2 crore rupees। 2 करोड़ रुपए आपका। ठीक है, जिसमें आपका इक्विटी कैपिटल इज 1.20 करोड़ एंड डेट कैपिटल इज हाउ मच? 80 लाख। ठीक है, 80 lakhs। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे ना, रेशियो से ही। क्या होगा? 60:40। 60:40 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। ठीक है, यूजुअली हाउ विल सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि आपका जैसे सब मतलब वो आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, मतलब देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, I'll make sure कि I'll come up with question based on this। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, so how we calculate weighted average cost of capital? It is cost of equity which is generally higher than the cost of debt। ठीक है, plus portion of equity। ठीक है, sorry, into portion of equity। ठीक है, portion of equity plus cost of debt, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू पोर्शन ऑफ डेट। ठीक है, तो अब यहाँ कैसे इसको समझेंगे हम लोग, इक्वेशन में आपको दे देता हूँ। ठीक है, सो हाउ दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देयर इज अ कंपनी हुज कैपिटल इज 100 रुपीज। ठीक है, या 100 करोड़ जो भी मान लो। ठीक है, सो कैपिटल इज 100 रुपीज या 100 करोड़ रुपीज, चलो 100 करोड़ कर देते हैं। ठीक है, सो देयर डेट टू इक्विटी रेशियो इज सपोज दैट 70:30। ठीक है, सो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 70:30। दैट मीन्स इन्होंने आपका डेट से रेज कर रखा, उधारी ले रखी कितने की? 70 करोड़ की। एंड इक्विटी आपका जो है वो कितने की है? आपका 30 करोड़ रुपीज की। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, अब अगर सपोज दैट हम लोग देखें, कॉस्ट ऑफ डेट इज, डेट का कॉस्ट इज सपोज दैट 10%। ठीक है, एंड इक्विटी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज सपोज दैट 15%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट, हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोलोगे, निकाल लोगे। ठीक है, कैसे? आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 15। ठीक है, इंटू 15, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इंटू आपका 0.3। ठीक है, 0.30। यहाँ पे कितना होगा आपका?
कितना है, कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%, सो 10 इंटू आपका हाउ मच, 70.70, ठीक है। तो इफ यूल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल रीच टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होगी। नाउ व्हाट दे लास्ट, ये आपका पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो नाउ कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। सो कंपनी इज प्लानिंग टू चेंज देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो आपका क्या कर रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर प्लानिंग टू चेंज दिस वन एट 50-50, ठीक है। तो वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब ओवरऑल पोर्शन ऑफ इक्विटी इंक्रीज कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ डेट को आपका डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर कमिंग एंटरिंग इनटू दिस एट सेम रेट, सपोज दैट, ठीक है। तो हाउ दिस चेंज विल इफेक्ट कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या होगा, सिंपल सिंपल दिख रहा है, देयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाई, ठीक है। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, 15% है, और उन्होंने अपना वेटेज 30 से 50 कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर रिवर्स केस होता है, इफ दे चेंज एंड दे एंटर टू 80:20 या 90:10, तो आपका कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज। देयर वाज एग्जैक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो आप प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फंडामेंटल्स है ना उनको आप जरूर पढ़ें, वहां से आपको इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें कि आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे क्वेश्चन है, क्या है, calculate the cost of equity from the following information. So proportion of equity is 50%, weighted average cost of capital is 17.5 and cost of debt is 12%, ठीक है। निकल जाएगा, अब ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो क्या है आपका, हमें पता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, प्लस आपका इनटू पोर्शन ऑफ इक्विटी, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, केडी सॉरी, इनटू आपका पोर्शन ऑफ डेट, ठीक है, इस तरीके से आपका, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी गिवन 17.50, ठीक है, और हमारा पोर्शन ऑफ डेट इज हाउ मच, पोर्शन ऑफ इक्विटी इज 50.50, एंड आपका जो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं आपका कि जो हमारे पास पोर्शन इट इज इनटू वी हैव टू फाइंड आउट दिस पोर्शन ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना, हाँ ठीक है, प्लस आपका 0.50, अगर 50% इक्विटी है तो दैट मीन्स 50% डेट है आपका, इनटू आपका 0.10, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट टू नो द आंसर, ठीक है। तो जैसे ये आपका 0.50 इंटू 12, सो इट इज 23% इज देयर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेम चीज आपका ये जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इसी को उन्होंने उस तरीके से आपका सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट वन, next question guys, the concept which is based on the premise that the firm will earn more profit by deploying funds then the cost of the funds is known as, ठीक है, so it is known as trading on equity, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस, इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। जैसे देयर इज अ कंपनी हु बोरोड 10 crore रुपीज ऑन एन एवरेज आपका सपोज है 10%, तो अब कंपनी ने 10% आपका बोरो किया, ठीक है, दे रेज अ डेट, ठीक है। सो डेट हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर लिवरेज फंड्स, ठीक है। सो व्हाट वील डू, वील मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम इसको आपका इन्वेस्ट करेंगे, एंड योर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी ग्रेटर देन 10% विद दिस पर्टिकुलर थॉट, ठीक है। तो हमने 10 करोड़ रुपए कहीं से बोरो किया, लोन लिया, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उससे प्रॉफिट बनाया, मतलब सपोज दैट वी मेड अ एक्चुअल रिटर्न ऑफ 15%, so the difference of 5% is your profit, so that is कहीं ना कहीं आपका, जिसको हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से जानते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। Which investment option is considered the most reliable in term of safety? ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ओके, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, अच्छा ओके, बॉन्ड्स मार्केट का क्वेश्चन है, सॉरी, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, YTM का क्वेश्चन आपका, बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। सो ट्रेजरी बॉन्ड्स आर बिकॉज दीज आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दे बैक बाय सोवेरेनिटी, सो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन,
What does stakeholders principle suggest? Okay, so we have two theories. One is agency theory, another one is stakeholders theory. Stakeholders theory always suggests any decision made by company which will take care about all the stakeholders of the organization, including promoters, management, employees, आपका consumers, customers, जो भी आपके environment, ये सब ठीक है. So the collective interest of the investor should be taken into consideration. Collective interest of all group should be taken into consideration. Collective interest of employee, no. Collective interest of outside, no. तो क्या होगा आपका correct answer? B will be right answer for this one. ठीक है? This is also part of ethics in business. Simple सा. Which of the following, which section of Indian Companies Act 2013 deal with CSR, corporate social responsibility? So CSR comes under section 135. So if there is a company whose market or whose turnover is more than 500 crore rupees, so they have to spend 2% of their 2% of their average net profit, profit from last 3 years into CSR activities. Okay? So these activities are divided between two parts. One is social responsibility and another one is environmental responsibility. So it is मतलब जो CSR एक्टिविटीज हैं दे आर लीगल इन केस ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर आप जो बेसिक कंडीशंस हो फुलफिल होते हैं. बेसिकली मोस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर आपका ये ऑप्शनल होती हैं. ठीक है, बट इंडिया में आपका इनको लीगलाइज किया गया. ठीक है, तो यू हैव टू स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो जैसे कुछ एरियाज. नेक्स्ट वन, Amit purchased a car by obtaining a loan on simple interest. So car cost is 2 lakh rupees and interest is 9% per annum. Simple interest है. So if the loan is paid back in 5 years, so calculate paid back after 5 years. Total कितना amount? तो ये मतलब this is very basic one. और पिछले 2 साल से ना मैं देख रहा हूँ वो CI और SI का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है. और अगर वो एन्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता भी है ना तो भी इग्नोर कीजिए. मेरा सजेशन ये होगा. रीजन क्यों क्यों इग्नोर कीजिए? क्योंकि उसको पढ़ने का टाइम अब नहीं है आपके पास. ठीक है, तो हाउ वी कैलकुलेट, आपका कौन सा केस है? एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी. तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. पी इंटू आर इंटू टी. ठीक है, सो पी आर टी. सो पी इज प्रिंसिपल, आर इज इंटरेस्ट एंड टी इज टाइम ड्यूरेशन. ठीक है, तो P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 90,000 और प्रिंसिपल ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2,90,000. 2 लाख रुपए का लोन लिया था उसने और 90,000 का इंटरेस्ट है, तो टोटल आपका पेबल कितना होगा? 2,90,000. नेक्स्ट वन, under that payment the entire loan amount is repaid at the end of the period. ठीक है, तो कौन सा होता है? there is a loan facility. जैसे किसी कस्टमर ने होम लोन लिया, now the outstanding balance is suppose that 10 लाख रुपीज और वो आपके पास आया, उसने बोला कि सर ये जो मेरा 10 लाख रुपए ये मैं आपको एक साथ पे कर देता हूँ और आप मेरा लोन क्या कर दो? खत्म कर दो. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज बलून पेमेंट. ठीक है, आपका मतलब वेयर द पेमेंट मेड बाय द कस्टमर इज ग्रेटर देन द रेगुलर ईएमआई. अब ऐसा तो है नहीं कि लास्ट ईएमआई को हम बलून बोलेंगे, नो. तो ऐसा जो केसेस होते हैं उनके लिए आपका ये यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन, which rule help to determine the approximate number of years before a person's money double within yearly compounding? So it is known as रूल ऑफ 72. ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा. ठीक है, और आपके ये तो बहुत काम का भी है ये. ठीक है, कस्टमर आते हैं ना ऐसे कि सर अगर इतने से एफडी करा रहे हैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा? ठीक है, अगर आपका जो ईयरली कंपाउंडिंग. सो रूल ऑफ 72 दैट जनरली tell us about the approximate number of years. ठीक है, जैसे suppose that there is a person who deposited 1 crore rupees at the rate of 10% per annum and it is compounded on annual basis. ठीक है, तो अगर इसका भी सेम सवाल होता है कि सर कितने समय में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, सो हाउ विल कैलकुलेट? सो सिंपली 72 डिवाइड बाय आपका नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10. सो इट विल टेक अप्रोक्सीमेट 7.2 ईयर्स. ठीक है, सो दिस विल टेक अराउंड 7.2 ईयर्स to double this income from 1 crore to 2 crore rupees. So that is the one. Correct? So this is very easy one. Next one. The most common method of appraising capital investment. तो ये मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले. So it is known as
नेट प्रेजेंट वैल्यू, सबसे ज्यादा मेथड आपका जो यूज होता है कैपिटल अप्रेजल्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो ऐसे हम लोग आपका इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला जैसे मैं आपको बता रहा था वहां पे ना, कैश फ्लो ईयर वन आपका 1+r⁴n, आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर माइनस, और अगर 4 5 है वो भी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर इफ योर एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 सो एक्सेप्ट, अगर ये आपका लेस देन 0 तो रिजेक्ट, ठीक है, ऐसा आपका चलेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी है आपका, ठीक है, आई गिव यू फेयर आइडिया। ABC company is considering an investment project that require an initial investment of 1 lakh rupees. The project expected to generate cash flow of rupees 30,000 per year for next 5 years, ठीक है। तो इनका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है दैट इज हाउ मच, 1 लाख रुपीज, ठीक है। जो फ्यूचर इनफ्लोज है आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, 4 5, वो कितना है, 5 साल, हर साल कितने का, 30,000 का, ठीक है, 30,000 ईच ईयर, ठीक है। हर साल आपका 30-30 हजार का आपका ये क्या कर रहा है, इनफ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड डिस्काउंट रेट यूज टू इवेलुएट द प्रोजेक्ट इज हाउ मच, 10% का डिस्काउंट रेट है। तो निकल जाएगा, कैसे निकालोगे, पहले साल का आपका 30,000 डिवाइड बाई 1+r.10 की पावर 1, ठीक है। सेकेंड ईयर आपका 30,000 1+r1 की पावर 2, इस तरीके से आप निकालोगे, -1 लाख, ठीक है, इनिशियल आपका। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो गेट टू नो कि मतलब वैसे देखने में क्या हो रहा है, ये टोटल कितना होता है आपका, 1.5 लाख होता है। वैसे देखने में 1 लाख लगा रहा है, 1.5 लाख मिल रहा है, तो फायदे का लग रहा है। बट एक्चुअल आपको कब पता चलेगा, जब इन सब का टोटल माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इन पॉजिटिव, तभी आपको इसका क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से आपके कैलकुलेशन आपका बेसिक है, बहुत बेसिक। यूजुअली मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया लास्ट 4 5 ईयर्स में, वो आपको ना ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं देता, वो 1 रुपए की वैल्यू दे देगा आपके काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इन, जैसे ये आपकी है फ्यूचर वैल्यू, इनकी प्रेजेंट वैल्यू है ये, तो इन सब का टोटल मैटर करता है हमारे लिए। इन सब का टोटल इज हाउ मच, जैसे आपका इन सब का टोटल -1 लाख, ये इन सब का टोटल इज 11 लाख, सॉरी 1,13,722 -1 लाख, तो 13,722। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट क्या है आपका, पॉजिटिव में है, 13,724, तो दे शुड एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव का क्या रोल होता है, बहुत आसान है। सो डेरिवेटिव परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन इन प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। तो जो अंडरलाइंग एसेट है उसका फ्यूचर प्राइसेस हमें पता चलता है, ट्रू। डेरिवेटिव कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ मार्केट, जिसमें जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा उसकी मार्केट डेप्थ रहेगी, नहीं। इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग ऑल्सो, ठीक है। सो अगर ट्रेडिंग ज्यादा होगा तो दैट विल बी मोर लिक्विड, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following options are correct, incorrect about derivatives? तो डेरिवेटिव के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, पहला ही इनकरेक्ट है, ठीक है। मार्केट फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वेरी लिक्विड, बात सही है, ठीक है। फ्यूचर हाईली लिक्विड। काउंटर पार्टी रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। कंपेयर टू फ्यूचर, तो हमें क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट ओनली स्टेटमेंट ए, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। ओटीसी वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड, वो जो मैंने आपको समझाया था, अगर वो आपने ध्यान रख लिया तो बहुत आसान आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, a saving bank account with 50,000 deposited, earning 4% interest and compounded yearly basis, take how long years for 50,000 to double 1 lakh? ये क्वेश्चन आपका वो रूल ऑफ 72, ठीक है। तो सिंपल सा आपका 72 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 18 ईयर्स, सो इट विल टेक 18 ईयर्स, ठीक है। सिंपल जो रूल ऑफ 72 है उसका एप्लीकेशन आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन, dash is used when a currency exchange occur after a time of spot date, ठीक है। so this is a case of value date concept, ठीक है। तो value date आपका, I hope you all are aware about this, ठीक है। so हमने आपका IN IFS में भी ये बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। so value date concept, value date is equal to settlement date, ठीक है। सेटलमेंट आपका डेट, सेटलमेंट का मतलब होता है सेम टाइम टू अकाउंट्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड, वन इज गेटिंग डेबिटेड, अनदर वन इज गेटिंग क्रेडिटेड, ठीक है। तो जो बायर है उसको करेंसी मिल रही है, या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिस भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको मिलेगा, सेलर को उसके बदले में पैसा मिलेगा। अब फॉरेक्स के केस में क्या होता है
कि कई बार आपका जो डेट ऑफ ट्रेड है और जो डेट ऑफ सेटलमेंट है इनमें डिफरेंस आता है, दैट इज नोन एज हर्स्टेड रिस्क, ठीक है। सेटलमेंट रिस्क या हर्स्टेड रिस्क के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे देर इज अ ट्रेड विच टुक प्लेस ऑन आपका 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 24, ठीक है। सो डेट ऑफ ट्रेड इज 1 नवंबर 24, ठीक है। सो इफ इट गेट सेटल्ड ऑन फर्स्ट इटसेल्फ, ठीक है, अगर ये एक को ही आपका सेटल हो जाती है, सो इट इज नोन एज T+0 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैश और रेडी और टुडे, ठीक है। दूसरा, इफ इट गेट सेटल ऑन 2 नवंबर, ठीक है, अगर ये 2 नवंबर को सेटल होता है अज्यूमिंग देर इज नो हॉलीडे ऑन 2 नवंबर और नो सैटरडे संडे, ठीक है, so it is known as T+1 and it is also called TOM, which is tomorrow, right? If it gets settled on 3rd November, ठीक है, 3rd November, assuming there is no Saturday, Sunday, no holiday, so it is known as T+2, which is also called spot, ठीक है, spot, ठीक है। So if it gets settled on 15th of February 2025, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर इसका सेटलमेंट कहाँ पे हो रहा है, डेट ऑफ ट्रेड इज 1 नवंबर 24 एंड सेटलमेंट टुक प्लेस ऑन 15th ऑफ February 2025, सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका फॉरवर्ड। सो इफ सेटलमेंट टुक प्लेस ऑन एनी डेट आफ्टर द स्पॉट डेट के बाद अगर वो कभी भी होगा तो दैट विल बी नोन एज फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आपका सिंपल, इफ सेटलमेंट टुक प्लेस ऑन सेम डे कैश, if it took settle on T+1 Tom, T+2 spot, and if it settle after this, so it is known as forward. Understood? तो अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। स्पॉट डेट पे अगर हुआ है तो स्पॉट डेट का मतलब है आपका क्या कह रहे हैं, करेंसी अगर आफ्टर अ टाइम ऑफ स्पॉट, आफ्टर अ टाइम ऑफ स्पॉट तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैश इज T+0 सेम डे, टॉम इज T+1 वर्किंग डे की बात हो रही है, एंड स्पॉट इज 1+2 T+2 सॉरी, and if a settlement took place any date after the spot date, so it is called forward. Next one, bond that give issuer the right to repay bonds before maturity date, so it is known as callable bonds, ठीक है। So it is something related to bond option, ठीक है। So bond option or which is also called optionality in bonds. So in case of bond optionality, we have two type of optionality. One is callable bonds, another one is puttable bonds. Callable bonds which generally give right to issuer, यहाँ से याद रखें, ठीक है, एंड पुटेबल बॉन्ड्स विच गिव राइट्स टू इन्वेस्टर्स, ये आपका किसको राइट देते हैं, इन्वेस्टर्स को। राइट क्या होता है, जैसे किसी कंपनी ने एक बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है, मेच्योरिटी है 15 साल की, ठीक है, सो 15 ईयर मेच्योरिटी, देयर इज अ कंपनी हु इशू अ बॉन्ड XYZ लिमिटेड, a bond with maturity of 15 years, ठीक है। So now this bond giving right to if this bond is callable bonds, so there will be an option, suppose that after 5 years there is an option कि if it is callable bonds, that means issuer of the bond or borrower of that in that particular context, they can redeem that particular bond from market. Redeem means buyback, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर से उसको वापस ले सकते हैं। एंड इफ इट इज पुटेबल बॉन्ड्स तो दे कैन सेल इट बैक टू दी, मतलब इन्वेस्टर्स दे कैन फोर्स टू द बोरोवर्स कि भैया ये आपका बॉन्ड, आप हमें हमारा पैसा दे दीजिए, सो दैट इज द वन, ठीक है। सो आप यहां से पकड़िए, इशूअर, अगर इशूअर है तो कॉलेबल, अगर आपका इन्वेस्टर है तो आपका पुटेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, वर्किंग कैपिटल, हाउ वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, वेरी सिंपल वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, which accounting standard guide about the appropriate accounting policies and disclosures in relation to lease, तो लीज किस में आता है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लास्ट ईयर, राइट। सो एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयर आर, for accounting purpose we have two type of lease, one is operating lease, operating which is short term in nature, another one is finance lease, ठीक है, which is long term and non cancelable in nature. So as per accounting standard 19, for accounting purpose there are two type of lease, वैसे अगर आप टाइप पढ़ोगे there are lots of type, right. Next one,
When a stock hypothecated against a fund-based facility, so it is known as cash credit limit. ठीक है? Sorry. Next one, siphoning of funds. It is called diversion of funds. ठीक है? So funds that are used for related purpose, no. Effectively, no. Funds that are used for unrelated purpose and operations of the business. So C will be correct answer for this one. Siphoning of funds means आपका डाइवर्जन. जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास कंपनी के कार्ड्स हैं, ठीक है, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए उन कार्ड्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, दैट इज सिफोनिंग ऑफ फंड्स. ठीक है, कॉर्पोरेट में बहुत होता है. चलो नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. करंट एसेट आपका 1,20,000, करंट एसेट 1,20,000. इसके अलावा शॉर्ट टर्म फाइनेंस मीन्स करंट लाइबिलिटीज 60,000. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल. तो कितना हो जाएगा 60,000. Also state what portion of total current asset that banker in India expect companies to have net working capital. तो कितना 25%. I just forgot that name of the committee. ठीक है, so 60,000 and 25%. ठीक है, इसमें लिखा है कमेटी का नाम. I'll let you know. हाँ, चलो दिस इज इट. तो गाइस ये आपका पूरा एक सेट जो हमने किया बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी. आई होप यू एंजॉय द सेशन. ठीक है, तो कैसा लगा जरूर बताएं आपका कमेंट्स के थ्रू. आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर योर फीलिंग्स. ठीक है, सो योर कमेंट्स बेसिकली मोटिवेट अस. ठीक है, तो ये आपका जब आप अच्छे से कमेंट्स लिखते हैं. ठीक है, और अगर आपका कोई सजेशन भी है, फील फ्री टू शेयर. ठीक है, आपके जो भी सजेशन विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज ऑल्सो, राइट. So this is our Telegram group, and you can access these particular PDF on our Telegram group, or else you can download our application, or you can visit on our website. अगर आपको एक साथ सारे PDF डाउनलोड करना है, so you can visit our website or download our application. तो जहाँ से आपको सारे अपडेट्स आपका एक साथ मिल जाएंगे. ठीक है, so if you like the session, please do like and share with your friends also, so they can also take benefit from these particular classes. So now I'll start your like first, now we'll wait till 20th. ठीक है, so 20th के बाद we have lots of plan about AFM as well as PPB. तो अब हम लोग सिर्फ IAN IFS पे फोकस करेंगे. I can understand कि अभी आप पूरा डेडिकेटेड उस पे हैं, बट my only concern is about the AFM and PPB because दोनों सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट हैं एंड यू डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर दोज वन, राइट. तो विल ट्राई आवर बेस्ट. ठीक है, बढ़िया से एफर्ट्स करेंगे साथ में. सो कहीं ना कहीं IAN IFS तो क्लियर करना ही करना है. हमने इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वीडियोज वहाँ पे हैं, मॉड्यूल A B C D चारों मॉड्यूल के, हर एक मॉड्यूल के यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं और मिक्स क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपके लिए. ठीक है, तो उनको कंज्यूम कीजिए. कोई भी अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट्स होती है तो आप उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.